شادی انسان کی زندگی کا ایک ایسا خوبصورت اور پاکیزہ بندھن ہوتا ہے جہاں دو اجنبی دل ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ محبت اور قربت اس رشتے کی اصل بنیاد ہوتی ہے، لیکن میری کہانی بالکل مختلف تھی۔ میرا نام عاصم ہے اور میں ایک اچھے کھاتے پیتے خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے اور گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میری امی نے میرے لیے مریم کا انتخاب کیا۔ مریم دیکھنے میں ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بہت پسند آ گئی تھی۔ ہمارے خاندان والے بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے شروع ہوئیں اور وہ دن بھی آ گیا جب میں مریم کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ شادی کی پہلی رات ہر مرد کی زندگی کا ایک سنہرا خواب ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے دل میں بہت سے ارمان اور خواب سجائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مریم گھونگھٹ نکالے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ نئی شادی ہے اس لیے وہ گھبرا رہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پیار سے باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے جسم سے مس ہوا وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے حیران کر گیا۔ اسے دھیمی آواز میں کہا کہ عاصم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سونے دیں۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کے زبردستی کرنا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ چلو آہستہ آہستہ وہ میرے ماحول میں ڈھل جائے گی۔ میں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور اسے سونے کا کہہ کر خود دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ لیکن وہ رات میری زندگی کی پہلی ایسی رات تھی جب مجھے احساس ہوا کہ میری ازدواجی زندگی شاید اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی میں نے سوچی تھی۔ اگلی صبح جب مریم اٹھی تو وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری امی اور بہنیں اس کے اخلاق اور سلیقے سے بہت خوش تھیں۔ وہ کچن کا کام بھی بہت اچھے سے کرتی تھی اور سب کا احترام بھی کرتی تھی، لیکن جیسے ہی شام ہوتی اور رات کا اندھیرا پھیلتا مریم کا رویہ یکسر بدل جاتا۔ وہ کمرے میں آنے سے کترانے لگتی۔ جب میں کمرے میں ہوتا تو وہ لاؤنج میں بیٹھ کے امی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی۔ جب بہت دیر ہو جاتی اور امی اسے کہتی کہ مریم اب جاؤ، عاصم کمرے میں اکیلا ہے، تو وہ بادل نخواستہ کمرے میں آتی۔ کمرے میں آتے ہی وہ فوراً بستر پہ لیٹ جاتی اور چادر اوڑھ کے سونے کا بہانہ کر لیتی۔ شروع کے چند ہفتے میں نے یہی سوچ کے صبر کیا کہ شاید وہ شرمیلی ہے اور اسے گھلنے ملنے میں وقت لگے گا۔ میں روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتا، اس سے محبت بھری باتیں کرتا، لیکن اس کی طرف سے ہمیشہ سرد مہر ہی ملتی۔ جب کبھی میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی میرے سر میں بہت درد ہے، کبھی کہتی کہ دن بھر کام کر کے بہت تھک گئی ہوں، اور کبھی خواتین کے مخصوص ایام کا بہانہ بنا کے مجھ سے دور ہو جاتی۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی یا پھر اس کی زندگی میں ماضی میں کوئی اور انسان تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہی۔ ایک رات میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور بہت سنجیدگی سے پوچھا کہ مریم، آخر بات کیا ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ کیا تمہیں میں پسند نہیں ہوں یا تمہاری مرضی کے خلاف یہ شادی ہوئی ہے؟ مریم میری یہ بات سن کے رونے لگی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں لیکن مجھے اس سب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں میرا دم گھٹنے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ اس کے الفاظ سن کے میں دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ پہ ایک عجیب سا خوف سوار تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد مریم نے ایک نئی ضد شروع کر دی۔ اسے کہا میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جانا ہے۔ میں نے سوچا شاید وہاں جا کے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے اور وہ کچھ پرسکون ہو جائے، اس لیے میں نے اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑ دیا۔ وہاں وہ پورے 15 دن رہی۔ اس دوران جب بھی میں اسے فون کرتا بہت اچھے سے بات کرتی، ہنستی، مسکراتی، لیکن جیسے ہی میں واپسی کا ذکر کرتا اس کا لہجہ مرجھا جاتا۔ جب میں اسے لینے گیا تو وہ واپس آنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھا بجھا کے گاڑی میں بٹھایا۔ گھر واپس آ کے بھی صورتحال تبدیل نہ ہوئی، بلکہ اب اس کے بہانے اور بڑھ گئے تھے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے جان بوجھ کے جاگتی رہتی یہاں تک کہ میں سو نہ جاتا۔ وہ بستر پہ نہ آتی اور اگر میں اس کا انتظار کرتا تو وہ واش روم میں گھنٹوں لگا دیتی۔ توبہ توبہ، میں ایک جوان مرد تھا اور میری بھی کچھ جسمانی اور جذباتی ضرورتیں تھیں۔ اپنی ہی بیوی کے ہوتے ہوئے میں کواروں جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور تھا۔ میرے دوست جب اپنی بیویوں اور اپنی خوشحال ازدواجی زندگی کی باتیں کرتے تو میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا۔ میں کسی سے اپنا یہ دکھ شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ایک ایسا حساس معاملہ تھا جو مرد اپنی غیرت کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 3 مہینے ہو گئے۔ اس دوران مریم کا میکے جانے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا۔ وہ ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے گھر چلی جاتی۔ کبھی کہتی امی کی طبیعت خراب ہے، کبھی کہتی کزن کی شادی ہے، اور وہاں جا کے کئی دن غائب رہتی۔ میری امی کو بھی اب شک ہونے لگا تھا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے اکیلے میں پوچھا کہ عاصم 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔
क्या मरियम का इलाज करवाना है या कोई और मसला है? मैं अम्मी की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। मैं उन्हें कैसे बताता कि इलाज तो तब हो जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता कायम हो। मरियम तो मुझे अपने जिस्म को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। मैंने अम्मी को बात टाल दी और कहा कि अभी हम कुछ वक्त चाहते हैं और बिजनेस की वजह से मैं भी मसरूफ़ हूँ, लेकिन अंदर से मैं रोज़ घुटता जा रहा था। मैंने मरियम को खुश करने के लिए हर तरीका अपनाया। मैं उसे महंगे महंगे ब्रांड्स की शॉपिंग करवाता, उससे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में डिनर पे ले जाता, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ बाजार और खाने तक महदूद होती। जैसे ही हम घर के बेडरूम में दाखिल होते, उसके चेहरे की रौनक गायब हो जाती। एक दिन मैंने सोचा शायद मरियम को रोमांस पसंद है और मैं कुछ अलग तरीका इख्तियार करूं। मैं मार्केट गया, वहाँ से कुछ नहायत खूबसूरत और नीम उरिया नाइट ड्रेस खरीद लाया। मैंने सोचा शायद इन कपड़ों को पहन के उसके अंदर का खौफ ख़त्म हो जाए और वो एक बीवी की तरह मेरे सामने आए। रात को मैंने वो गिफ्ट मरियम को दिया और कहा कि मरियम, आज रात तुमने मेरे लिए ये ड्रेस पहनना है। मरियम ने जब वो बॉक्स खोला और उसके अंदर वो बारीक और नीम उरिया कपड़े देखे तो उसके चेहरे पे गुस्सा और नापसंदीदगी के तासुरात उभर आए। उसने वो बॉक्स जोर से बेड पे पटक दिया और कहने लगी कि आसिम, आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे लिए ऐसे बेहुदा कपड़े लेके आए हैं। मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ, मैं ये सब अयाशी और बेहयाई नहीं कर सकती। मैं उसकी ये बात सुन के दंग रह गया। मैंने गुस्से से कहा, मरियम तुम मेरी बीवी हो, मैं कोई बाहर का मर्द नहीं हूँ। बीवी अपने शौहर के लिए सब कुछ करती है और ये कोई बेहयाई नहीं है, ये हमारा हक है। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ी लगी और कहने लगी कि मैं ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। अगर आपको यही सब करना है तो मुझे मेरे मैके छोड़ाएं। उस रात हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मरियम ने अपना तकिया उठाया और लाउंज के सोफे पे जाके सो गई। उस दिन मुझे शदीद मायूसी हुई। मुझे लगा शायद मेरे प्यार और मेरी मर्दानगी में कोई कमी है या फिर मरियम के दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने के बजाय अब हफ्तों में गुजर रहे थे और हमारी शादी को 4 महीने हो चुके थे। इन 4 महीनों में मेरे अंदर की तड़प इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं रातों को उठ के रोता था। मैं सोचता था, या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। मैं मरियम के सामने गिड़गिड़ाता, उसके सामने हाथ जोड़ता कि मरियम, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन मरियम के दिल पे जैसे पत्थर रखा हुआ था। वो हर बार रो के अलग हो जाती और कहती कि आसिम, मुझे कुछ वक्त दो, मैं खुद को तैयार कर रही हूँ। लेकिन वो वक्त कभी नहीं आता था। जब भी कोई इतवार या छुट्टी का दिन आता, मरियम फ़ौरन अपने पापा को फ़ोन कर देती कि मुझे लेने आ जाएं। वो घर के माहौल से भागना चाहती थी क्योंकि उसे मालूम था कि घर पे रहने से मुझे उसके करीब आने का मौका मिलेगा। जब वो मैके चले जाती तो मैं अपने खाली कमरे को देख के कुड़ता रहता, बेड पे पड़ी उसकी चादर को सूंघता और उसकी खुशबू से अपने दिल को बहलाता। मेरी हालत एक ऐसे प्यासे जैसी थी जो दरिया के किनारे खड़ा हो के भी पानी की एक बूंद को तरस रहा हो। मरियम के वालिदैन भी अब हमसे पूछने लगे थे, क्या आसिम, मरियम इतने दिन यहाँ क्यों रहती है? क्या तुम्हारे घर में कोई झगड़ा है? मैं हमेशा उनके सामने मुस्कुरा के कहता कि नहीं पापा, कोई झगड़ा नहीं। मरियम का दिल आप लोगों में बहुत लगता है, इसलिए मैं उसे मना नहीं करता। लेकिन मेरे दिल का हाल सिर्फ मैं ही जानता था। अब हमारी शादी को 5वां महीना शुरू हो चुका था और मरियम के बहाने अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब उसने एक नया तरीका निकाला था। वो रात को सोने से पहले जानबूझ के अपनी सास यानी मेरी अम्मी के कमरे में चली जाती और उनकी टांगें दबाने के बहाने वहाँ 12 बजे तक बैठी रहती। जब अम्मी उसे कहती कि मरियम अब जाके सो जाओ, आसिम सुबह जल्दी दुकान पे जाता है, तो कहती अम्मी जी अभी मेरा दिल नहीं करा सोने को, मैं आपके पास ही बैठूंगी। वो घंटों वहाँ गुजार देती ताकि जब वो हमारे कमरे में आए तो मैं गहरी नींद सो चुका हूँ। 1-2 बार मैंने जाग के उसका इंतज़ार किया। जब वो रात के 1 बजे कमरे में दाखिल हुई और मुझे जागता हुआ देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो फ़ौरन बोली, आसिम मुझे बहुत तेज़ उल्टी आ रही है और मेरा पेट ख़राब है। वो वॉशरूम में चली गई और वहाँ आधा घंटा गुजार दिया। जब बाहर आई तो उसने अपना बिस्तर ज़मीन पर लगा लिया और कहा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप मुझे हाथ मत लगाना। मैं उसके इन रोज़ रोज़ के ड्रामों से इस कदर ज़िद हो चुका था कि मेरा दिल करता था कि मैं अपना सर दीवार से दे मारूं। मेरे अंदर का मर्द रोज़ मरता था और रोज़ जीता था। मैंने सोचा शायद मरियम को कोई जिस्मानी बीमारी है। मैंने उससे कहा, मरियम चलो हम किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हारा मुआयना कराते हैं, शायद तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी है। मरियम इस सुन के गुस्से से पागल हो गई और कहने लगी, आसिम आप मुझे पागल या बीमार समझते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप खुद बीमार हैं जो हर वक्त यही बातें सोचते रहते हैं। उसकी ये तल्ख बात सुन के मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं खामोश हो गया और उस दिन के बाद से मैंने मरियम से बात करना बिल्कुल कम कर दिया। घर में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई। हम दोनों एक ही कमरे में होते थे लेकिन हमारे दरमियान मीलों की दूरी थी। मैं सारा दिन दुकान पर सख्त मेहनत करता था कि मेरा दिमाग इन बातों से दूर रहे, लेकिन जैसे ही शाम होती मेरे पाँव घर की तरफ उठने से इनकार कर देते। मुझे अपना ही घर एक जेल खाना नजर आने लगा था जहाँ मेरी कोई बसात नहीं थी।
शादी के 6 महीने के एक दोपहर में बहुत उदास बैठा था कि मेरा एक पुराना जिगरी दोस्त जावेद मेरी दुकान पे आया। जावेद ने मेरा उतरा हुआ चेहरा और मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के देखे तो वो चौंक गया। उसने मेरा हाथ पकड़ के पूछा, आसिम यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो 6 महीने पहले शादी के वक्त इतने खुश और सेहतमंद थे, अब ऐसे लगता है जैसे तुम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो। तुम्हारा बिजनेस भी इतना अच्छा चल रहा है, फिर ये परेशानी कैसी है? मैंने पहले तो बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन जावेद ने जब बहुत इसरार किया और अपने सर की कसम की तो मेरा जब्त टूट गया। मैं जावेद के गले लग के बच्चों की तरह रो पड़ा। मैंने उसे अपनी शादी के इन 6 महीनों का एक एक पल सुनाया। मैंने उसे बताया कि मरियम किस तरह मुझसे दूर भागती है, कैसे कैसे बहाने बनाती है, वो इस सब से बहुत ज़्यादा डरती है और बार बार मैके चली जाती है। मैंने उसे अपने नाइट ड्रेस वाले वाक़े के बारे में भी बताया। जावेद ने मेरी पूरी दास्तान बहुत सब्र और गौर से सुनी। उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने मुझे हौसला दिया और कहा कि आसिम यार तुमने बहुत सब्र किया है, कोई दूसरा मर्द होता तो अब तक तमाशा खड़ा कर चुका होता या दूसरी शादी का सोच लेता, लेकिन तुमने मरियम की इज्जत रखी है, बहुत बड़ी बात है। देखो आसिम, ये जो मरियम का मसला है ये कोई अखलाकी बुराई नहीं, ना ही वो तुमसे नफरत करती है। दरअसल कुछ लड़कियों के मिजाज में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। उनके अंदर की जिस्मानी गर्मी बेदार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो शौहर के लम्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनके दिमाग पे खौफ तारी हो जाता है। इसका इलाज आम डॉक्टरों के पास नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेज़ी गोलियां देते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका इलाज देसी जड़ी बूटियों में है। हमारे शहर के पुराने शाही बाज़ार में एक बहुत बूढ़े और ख़ानदानी हकीम साहब बैठते हैं, जिनका नाम हकीम अल्लाह बख्श है। वो नब्ज़ देख के इंसान के अंदर का सारा हाल बता देते हैं और उनके पास ऐसी ख़वातीन का बहुत ही कामयाब और मुजरब इलाज है जो शादी के बाद शौहर से दूर भागती हैं। तुम एक बार मेरे कहने पे उनके पास जाओ, वो तुम्हें कोई ऐसा देसी नुस्खा देंगे जिससे मरियम के अंदर की ये सर्द मोहरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जावेद की बातों ने मेरे मुरझाए हुए दिल में उम्मीद के चंद फूल खिला दिए। मुझे लगा शायद यही वो रास्ता है जो मेरी उजड़ी हुई ज़िंदगी को दोबारा बसा सकता है। मैंने जावेद से हकीम साहब का पूरा पता लिखा और अगले ही दिन अपनी दुकान अपने मैनेजर के हवाले करके पुराने शाही बाज़ार की तरफ रवाना हो गया। वो बाज़ार बहुत तंग और पुराना था, जहाँ जड़ी बूटियों की एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मैं पूछता पूछता हकीम अल्लाह बख्श के मतब पर पहुँच गया। मतब के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था और अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग रेशमी लिबास पहने बैठे थे। उनकी आंखों में बड़ी दानाई और चेहरे पर बड़ा सुकून था। मैं अंदर गया, उन्हें सलाम किया। उन्होंने मुझे सामने रखी कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। उन्होंने सबसे पहले मेरी नब्ज़ पकड़ी और चंद सेकंड तक अपनी आंखें बंद करके मेरी नब्ज़ की रफ्तार को महसूस करते रहे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक गहरा सांस लेके बोले कि नौजवान, तुम्हारी नब्ज़ तो शेर की तरह तेज़ और तवाना है। तुम जिस्मानी तौर पर एक मुकम्मल और ताकतवर मर्द हो। तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसी बहुत गहरे जहनी कर्ब और प्यास का शिकार हो। बताओ तुम्हें क्या दुख है? मैंने इधर उधर देखा। कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपनी शर्म को एक तरफ रखा और हकीम साहब के सामने अपने 6 महीनों की तड़प और कश्मकश का सारा अहवाल खोल के रख दिया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरी बीवी मेरे पास आने से कतराती है। वो मेरे पास आने से इस कदर भागती है कि जैसे मैं कोई जल्लाद हूँ। वो रोज़ नए बहाने बनाती है और बार बार अपने मैके चली जाती है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन उसका खौफ ख़त्म नहीं होता। उल्टा वो मुझे बेहुदा कहती है। हकीम साहब ने मेरी पूरी बात बहुत गौर से सुनी और अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आसिम बेटा परेशान मत हो, ये दुनिया का कोई अनोखा मसला नहीं। बहुत सी ख़वातीन के जिस्मानी निज़ाम में गर्मी की शदीद कमी होती है, जिसकी वजह से उनके एसाब मुंजमद हो जाते हैं। जब शौहर उनके करीब आता है तो उनके मुंजमद एसाब में दर्द और खौफ की लहर दौड़ती है, इसलिए वो इस सब से जान छुड़ाती हैं और बहाने बनाती हैं। इसमें उस लड़की का भी कसूर नहीं, क्योंकि वो खुद अपने जिस्म के हाथों मजबूर है। मेरे पास इसका एक ऐसा देसी नुस्खा है जो मेरे दादा के ज़माने से हमारे ख़ानदान का राज है। ये जड़ी बूटियों का एक ख़ास सफ़ूफ है जो औरत के जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को एतदाल पे लाता है और उसके दिमाग से खौफ के खुलियात को ख़त्म करके उसके अंदर अपने शौहर के लिए शदीद तड़प और मोहब्बत पैदा करता है। हकीम साहब उठे और उन्होंने अपने पीछे रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक छोटा सा चमड़े का बक्स निकाला। उस बक्स के अंदर से उन्होंने एक छोटी सी कागज़ की पुड़िया निकाली, जिसके अंदर सुनहरी और खाकस्तरी रंग का एक जादुई सफ़ूफ था। उन्होंने वो पुड़िया मेरे हाथ में रखी और इंतहाई संजीदगी से कहा कि आसिम बेटा, ये बीवी को गर्म करने का और उसके अंदर की सर्द मोहरी को जड़ से ख़त्म करने का देसी नुस्खा है। तुम्हें करना यह है कि जब मरियम अपने मैके से वापस आए तो किसी भी रात सोने से आधा घंटा पहले ये सफ़ूफ दूध के एक गर्म ग्लास में मिला के उसे पिला देना। याद रखना, उसको इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि दूध में कोई दवा मिली है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो उसका नफ्सियाती खौफ दोबारा बेदार हो जाएगा।
तुम उसे बिल्कुल आम दूध की तरह ये पिला देना और फिर अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखना। उस रात मरियम के अंदर की वो कायनात बेदार होगी जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उसके अंदर का सारा डर, सारी जिद और सारी सर्द मोहरी उस एक पुड़िया के असर से पिघल जाएगी और वो खुद तुम्हारी बाहों में आने के लिए बेचैन हो जाएगी। मैंने वो पुड़िया किसी कीमती खजाने की तरह अपनी जेब के अंदरूनी हिस्से में छुपा ली। हकीम साहब का बहुत एहतराम से शुक्रिया अदा किया, उन्हें उनका हदिया दिया और वहाँ से बाहर आ गया। जब मैं बाजार से निकल रहा था तो मेरा दिल किसी मासूम बच्चे की तरह उछल रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे 6 महीने की तड़प अब ख़त्म होने वाली है। मैं सीधा घर पहुंचा तो पता चला कि मरियम अभी तक अपने मैके ही थी और उसे गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने सोचा कि अब मैं उसे खुद लेने जाऊंगा और इस बार उसे वापस लाकर हकीम साहब के इस नुस्खे का कमाल देखूंगा। मैंने मरियम को फ़ोन किया तो उसने हमेशा की तरह उदास आवाज़ में कहा कि आसिम, मैं अभी 2 दिन और रुकना चाहती हूँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इस बार उसका कोई बहाना न सुना और सख्त लहजे में कहा कि मरियम, मैं शाम को तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। मरियम मेरी आवाज़ की सख्ती देख के खामोश हो गई। शाम को मैं अपनी गाड़ी लेके उसके घर पहुँचा। उसकी अम्मी ने मुझे चाय पिलाई और मरियम अपना बैग लेके गाड़ी में आ बैठी। पूरा रास्ता वो मुझसे रूठी रही और उसने एक लफ्ज़ भी ना बोला। उसके चेहरे पे वही पुरानी बेजारी और मुझसे दूर रहने की तड़प साफ नज़र आ रही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि मरियम, आज तुम्हारी ये नाराज़गी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। जब हम घर पहुँचे तो रात के 8 बज चुके थे। अम्मी ने हम दोनों को खाना दिया। हमने खामोशी से खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही मरियम ने हमेशा की तरह अपनी चादर उठाई और बेड के आखिरी कोने में जाके मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। उसने ये जाहिर किया कि वो सफ़र की वजह से बहुत थक गई है और सो रही है। मैंने मरियम की उस पुश्त को देखा जो पिछले 6 महीनों से मेरा मुकद्दर बनी हुई थी। मैं किचन में गया और दूध के 2 गिलास गर्म किए। मैंने मरियम वाले गिलास में हकीम साहब की वो देसी पुड़िया खोल के डाल दी। सफ़ूफ दूध में मिलते ही ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कोई वजूद ही ना था। मैं दोनों ग्लास लेके बेडरूम में वापस आया। मरियम अभी जाग रही थी और अपने फ़ोन पे किसी सहेली से चैट कर रही थी। मैंने उसके करीब जाके दूध का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया और नरमी से कहा कि मरियम, तुम सफ़र करके आई हो और काफ़ी थक चुकी हो, ये गर्म दूध पी लो, इससे तुम्हें बहुत अच्छी और पुरसकून नींद आएगी। मरियम ने पहले तो नखरा दिखाया और कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आसिम आप खुद पी लें। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ के प्यार से कहा, मरियम मेरी खातिर पी लो, मैंने बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए ये दूध गर्म किया है। मरियम ने मेरी आंखों में देखा। शायद उसे पिछले झगड़ों का ख्याल आया, इसलिए उसने चुपचाप ग्लास पकड़ा और देखते ही देखते वो पूरा दूध पी गई। मैंने मरियम के हाथ से वो खाली ग्लास लिया और उसे साइड टेबल पे रख दिया। मेरा दिल अब इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने सीने में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद कर दी और सिर्फ मध्यम लाइट बल्ब ऑन रहने दिया। मैं खुद भी बेड पे लेट गया और चादर ओढ़ के इंतज़ार करने लगा कि अब हकीम साहब का वो देसी नुस्खा क्या असर दिखाता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। 20 मिनट गुजर गए लेकिन मरियम बिल्कुल साकित लेटी रही। मुझे धड़का लग गया कि कहीं हकीम साहब ने मुझे कोई मामूली पाउडर तो नहीं दे दिया, कहीं मेरी ये आखिरी उम्मीद भी खाक में तो नहीं मिल जाएगी। मैं इसी कश्मकश और मायूसी में घिर रहा था कि अचानक मरियम के जिस्म में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने अपने ऊपर से चादर को यकदम हटा दिया और एक लंबा गहरा सांस लिया। मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि उसकी सांसें यकदम बहुत तेज हो चुकी थीं और उसका पूरा जिस्म लरज रहा था। उसे अपना हाथ अपने गले पर रखा जैसे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। वो बेड पर बेचैन होकर करवटें बदलने लगी। उसके चेहरे पर जो रिवायती ठंडक और बेजारी थी वो अब गायब हो रही थी और उसकी जगह एक अजीब सी सुर्खी और तड़प नुमाया हो रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद अपना रुख मेरी तरफ किया और अपनी नशीली आंखों से मुझे देखा। उन आंखों में वो पुराना खौफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, बल्कि वहाँ एक ऐसी तपिश और एक ऐसी आग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मरियम ने धीरे से अपना इंतहाई गर्म हाथ मेरी बाहों पर रखा। उसका लम्स इंतहाई गर्म था, जैसे उसके पूरे वजूद में कोई लावा उबल रहा हो। उसे लरजती हुई मधोश आवाज़ में कहा कि आसिम, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पूरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और आग लगी हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। आसिम, खुदा के लिए मेरे करीब आओ, मुझे अपने पास छुपा लो। मरियम के मुंह से अल्फाज सुनना मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था। वो बीवी जो 6 महीने से मेरे लम्स से भागती थी, आज खुद तड़प कर मेरी बाहों में आने की इल्तिजा कर रही थी। उसे तड़प के मुझे अपने वजूद में समेट लिया और उस रात मरियम ने मेरे साथ मोहब्बत का वो तूफ़ान बर्पा किया जिसका मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। उस देसी नुस्खे ने मरियम के अंदर की सर्द मोहरी को सेकंड्स में जला के राख कर दिया और वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे तवील और सच्ची अज़दवाजी रात बन गई थी, जहाँ हमारी 6 महीने की प्यास और तड़प हमेशा के लिए मिट गई। उस जादुई तूफ़ानी रात के गुजरने के बाद जब अगली सुबह कमरे की खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें अंदर दाखिल हुईं तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था।
میں نے سوچا تھا کہ اب میری 6 ماہ کی تنہائی اور مریم کی سرد مہری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہ بیڈ کے کونے پہ بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف کے سائے تھے۔ وہ اپنے نائٹ ڈریس کو اپنے جسم پہ سمیٹے ہوئے مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی اجنبی دشمن ہوں۔ میں گھبرا کے بستر سے اٹھ بیٹھا اور اس کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا وہ یکدم بیڈ سے نیچے اتر گئی اور دیوار سے جا لگی۔ اسے چلاتے ہوئے کہا، عاصم دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا، تم نے کل رات میرے ساتھ کیا کیا اور مجھے کیا کھلایا پلایا؟ میں مریم کی یہ بات سن کے دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا، مریم تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو اور کل رات جو کچھ ہوا وہ ہمارے درمیان کی محبت تھی، اس میں کھلانے پلانے کی کیا بات ہے؟ مریم نے روتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا اور کہنے لگی کہ نہیں عاصم، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں خود کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ میں 6 مہینے سے جس خوف اور جس دوری کو اپنے اندر پال رہی تھی وہ ایک دم کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ کل رات میرے پورے جسم میں ایک ایسی آگ اور ایسی دیوانگی تھی جو میری اپنی نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے حواس پہ کسی نے جادو کر دیا ہو۔ تم نے کل رات مجھے جو دودھ کا گلاس دیا تھا اس میں ضرور کچھ ملا ہوا تھا۔ عاصم سچ بتاؤ، تم نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ میں اندر سے بری طرح کانپ گیا، لیکن میں نے خود پہ قابو پایا اور مریم سے کہا کہ تم سفر کی وجہ سے تھک گئی تھی اور شاید تمہارا بلڈ پریشر تیز ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تم بلا وجہ مجھ پہ شک کر رہی ہو۔ لیکن مریم کا شک ختم نہیں ہوا۔ اسے اس دن کے بعد سے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا۔ گھر کے ماحول میں اب پہلے سے بھی زیادہ سسپینس اور تھرلر آ چکا تھا۔ مریم اب مجھ سے سہمنے لگی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں ایک مشکوک سا خوف ابھر آتا۔ وہ دن بھر امی کے سامنے بالکل نارمل رہنے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہ کمرے کا تالا اندر سے بند کر لیتی یا پھر فرش پہ اپنا بستر لگا کے مجھ سے میلوں دور سوتی۔ ہمارے درمیان دوریاں پہلے سے بھی زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہو چکی تھیں، کیونکہ ایک بار قربت کا ذائقہ چکھنے کے بعد دوبارہ اس تنہائی کے جہنم میں گرنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ 15 دن اسی کشمکش اور خاموش جنگ میں گزر گئے۔ مریم کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا اور میرے اندر کا مرد اب دوبارہ تڑپنے لگا تھا۔ ایک رات جب مریم ہمیشہ کی طرح مجھ سے منہ پھیر کر سو رہی تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اپنی الماری کھولی جہاں میں نے حکیم صاحب کی دی ہوئی اس دیسی جڑی بوٹی کی ایک اور پڑیا چھپا کے رکھی تھی۔ میں نے سوچا مریم کی اس ضد کو توڑنے کا اور اس کے اندر کی دیوانگی کو دوبارہ بیدار کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ میں کچن میں گیا اور پانی کے گلاس میں وہ جادوئی سفوف مکس کر دیا۔ میں کمرے میں واپس آیا اور مریم کو زبردستی جگایا۔ مریم نے غصے سے مجھے دیکھا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، مریم یہ پانی پی لو، تمہارے سر میں درد ہے، یہ اس کی دوا ہے۔ مریم نے ہچکچاہٹ کے بعد وہ پانی پی لیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ 15 منٹ گزرے تھے کہ کمرے کا درجہ حرارت جیسے یکدم بدل گیا۔ مریم کے جسم میں وہی پرانی تڑپ اور بے چینی دوبارہ بیدار ہونے لگی۔ اسے چادر پھینکی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کے اندر کی عورت اب دوبارہ بیدار ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر میری طرف لپکی اور اس رات اس نے میرے ساتھ پیار کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس کے لمس میں ایک ایسی دیوانگی اور ایک ایسی تڑپ تھی کہ وہ بار بار مجھ سے لپٹ رہی تھی اور مجھے اپنے وجود میں سمیٹ رہی تھی۔ ہم دونوں اس رات محبت کے اس سمندر میں ڈوب گئے جہاں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میں نے مریم کے جسم کے ایک ایک حصے سے اپنی 6 ماہ کی پیاس بجھائی اور اس نے بھی مجھے خود کو پوری طرح سونپ دیا۔ لیکن اس جادوئی رات کے ختم ہوتے ہی جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، وہی پرانی تھرلر اور وہی پرانی کشمکش دوبارہ لوٹ آئی۔ مریم جب صبح ہوش میں آئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اسے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کے زمین پر پٹکنا شروع کر دی۔ وہ مجھ پہ چلانے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، عاصم تم ایک گھٹیا مرد ہو، تم میرے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم مجھے کوئی نشہ دیتے ہو۔ میں اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے دبوچ لیے اور اسے بیڈ پہ پٹکتے ہوئے غصے سے چلایا کہ مریم بس، بہت ہو گیا، اب تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے تمہیں عزت دی ہے، تمہارے ناز اٹھائے ہیں، 6 مہینے سے تمہاری ہر ضد برداشت کی ہے، پھر تم مجھ سے اور ہم بستری سے اس طرح کیوں بھاگتی ہو؟ مریم میرے اس غصے کو دیکھ کے یکدم خاموش ہو گئی اور پھر وہ بیڈ پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے ریت تلے دبے ہوئے آنسو اب ایک سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ اسے روتے ہوئے جو سچ میرے سامنے اگلا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ مریم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، عاصم میں آپ سے اور آپ کے لمب سے اس لیے بھاگتی ہوں کیونکہ میں شادی سے پہلے یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو شارق کو پسند کرتی تھی۔ میں اس سے سچی محبت کرتی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی آپ سے کر دی۔ میرے دل اور دماغ میں صرف اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں جب بھی آپ کے قریب آنے کا سوچتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غداری کر رہی ہوں۔ میں اپنے جسم پہ کسی دوسرے مرد کا لمس برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں بہانے بناتی تھی اور اس سب سے بھاگتی تھی۔ مریم کا یہ انکشاف میرے دل پہ خنجر کی طرح لگا۔
मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया। मुझे लगा मेरी 6 माह की मोहब्बत और तड़प एक धोखा थी। मरियम का वो इंकशाफ मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा खंजर बन के लगा था। मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी 6 माह की तमाम तर मोहब्बत, तड़प और इंतज़ार एक पल में खाक हो गए हों। मैंने गहरा सांस लिया और अपने अंदर उठते हुए गुस्से के तूफान को पूरी तरह से पी लिया। मैं मरियम के सामने बेड पे बैठ गया और उसका वो खूबसूरत चेहरा जो अब आंसुओं से भीगा हुआ था अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया। मैंने उसकी रोती हुई सुर्ख आंखों में देखते हुए निहायत संजीदगी, धीमे और प्यार भरे लहजे में कहा, मरियम, मेरी बात अब गौर से सुनो। तुम अब मेरे निकाह में हो और खुदा ने आसमानों पे तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया है। शारिक तुम्हारा गुजरा हुआ माजी था और मैं तुम्हारा मौजूदा हाल और आने वाला खूबसूरत मुस्तकबिल हूँ और तुम एक बहुत ही शरीफ और ख़ानदान घराने की लड़की हो। अब इस माजी की अधूरी मोहब्बत को अपने दिमाग से निकाल फेंको और मुझे अपने शौहर की हैसियत से पूरे दिल से कबूल कर लो, क्योंकि निकाह के बाद औरत का असल मान, उसका मुहाफिज और उसके कायनात सिर्फ उसका शौहर ही होता है और शौहर का लम्स कोई गुनाह नहीं बल्कि खुदा की तरफ से एक पाकीज़ा तोहफ़ा है। मरियम मेरी ये बातें सुन के बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके दिल के किसी कोने में अब भी शारिक के लिए एक तड़प और एक वहम बाकी था जो उसे मेरे करीब आने से रोक रहा था और हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर रहा था। मैंने मरियम की उस गहरी खामोशी को महसूस किया और उसके दिमाग से शारिक का वो झूठा भूत हमेशा के लिए उतारने के लिए एक आखिरी और हतमी फैसला किया। मैंने मरियम से कहा, मरियम, अगर तुम्हें अब भी लगता है कि शारिक तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और वो तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तो तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने अपने फ़ोन से उसे कॉल करो, उससे सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या वो तुम्हें इस बात पर कबूल कर सकता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने अपने शौहर आसिम के साथ वक्त गुजारा है और तुम अब एक मुकम्मल औरत हो, और अगर वो इस सब के बावजूद तुम्हें अपनाने को तैयार है तो मैं तुम्हें इसी वक्त खुशी से छोड़ दूंगा। मरियम ने इंतहाई हैरत, शक और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ मेरी तरफ देखा। उसे लरजते हुए हाथों से अपना फ़ोन उठाया और शारिक का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की घंटी बजने लगी और मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। दूसरी तरफ से शारिक ने फ़ोन उठाया तो मरियम ने रोते हुए इंतहाई बेबसी से कहा कि शारिक, मैं आसिम के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं अब भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी आसिम से शादी हो चुकी है और मैं उसके साथ वक्त गुजार चुकी हूँ। मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ। क्या तुम मुझे अब भी कबूल करोगे और मुझसे शादी करोगे? मरियम की ये बात सुन के फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शारिक का लहजा एकदम इंतहाई सख्त, कूरा और हकारत अमेज़ हो गया। उसे बड़ी बेरुखी से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम एक शादीशुदा औरत हो और अपने शौहर के साथ रहकर उसके साथ खुशियाँ गुजार चुकी हो। मैं एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जो किसी दूसरे मर्द के साथ रह चुकी हो? अब मेरे और तुम्हारे दरमियान सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। तुम अपने उसी शौहर के साथ रहो और मुझे दोबारा कभी फ़ोन मत करना। ये कह के शारिक ने फ़ोन काट दिया। उसके इन तल्ख और बेरहम अल्फाज ने मरियम के दिल पर जैसे बिजली गिरा दी थी। उसका वो वहम, उसका वो गरूर और उसकी माजी की मोहब्बत का शीशा एक सेकंड में चकनाचूर हो गया था। उसकी आंखें अक्सर खुल गईं कि जिस मर्द के लिए वो अपनी सच्चे और मोहब्बत करने वाले शौहर को तड़पा रही थी, वो उसके इस तरह करने पर उसे ताना दे के उसे मूली गाजर की तरह छोड़ गया। मैंने मरियम को देखा जब अपने फ़ोन को हाथ में पकड़े सदमे से मुंजमद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अपनी नादानी का पछतावा साफ नजर आ रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मरियम, देखा तुमने, वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करता था। वो सिर्फ एक शराब था और सच्ची मोहब्बत तो वो होती है जो हर हाल में इंसान का साथ निभाए। और मैंने तुम्हारे रोज़ रोज़ के इनकार और तज़हीक के बाद भी तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने दिल से लगा के रखा और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की। मरियम को अब अपनी गलती का शदीद और गहरा एहसास हो चुका था। उसके अंदर का सारा पुराना खौफ और माजी का साया एकदम गायब हो गया। उसे अपना फ़ोन एक तरफ फेंका और तड़प के खुद को मेरे पास आने दिया और मेरे सीने पर अपना सर रख के ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी कि आसिम, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं कितनी नादान और अंधी थी कि आप जैसे सच्चे, मुखलिस और प्यार करने वाले शौहर को छोड़ के एक झूठे इंसान के पीछे भाग रही थी और खुद को इस जहन्नुम में धकेल रही थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूँगी। आप जो चाहें करें, मैं अब कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी। मरियम ने अब मुझे पूरी तरह अपनी ज़िंदगी, रूह और दिल से अपना शौहर तस्लीम कर लिया था और उस दिन के बाद से हमारे दरमियान की तमाम तर खामोशियाँ, दूरियाँ और नफ़रतें हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। अब कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उसके अंदर की वो रिवायती ठंडक और बेजारी अब एक सुलगती हुई सच्ची मोहब्बत और तड़प में बदल चुकी थी। अब उसे किसी हकीम की देसी पुड़िया या जादुई सफूफ की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके अपने दिल के अंदर मेरे लिए प्यार की तमन्ना भड़क रही थी। मरियम ने खुद बढ़ के मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक शर्मीलापन था और नई शादीशुदा दुल्हन जैसी खूबसूरती थी जो मैंने पिछले कई महीनों में नहीं देखी थी।
उसने अपने नाजुक हाथ मेरे गले में डाल दिया और धीरे से मेरे लबों पर अपने लब रख दिए। उसके लम्स में एक ऐसी गर्मी और ऐसी सच्चाई थी कि मेरे अंदर का मर्द एक बार फिर पूरी तरह जाग उठा। उसने तड़प के अपनी कमीज़ के बंधन खुद ही खोल दिया और बेड पे लेटते हुए मुझे अपनी बसात में समेटने का इशारा किया। मैंने उसके इस खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर मेरे लिए वक्फ हो जाने वाले जिस्म को अपने आगोश में ले लिया। हमारी वो रात मोहब्बत की तमाम तरहदों को पार कर जाने वाली रात थी, जहाँ कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था और ना ही कोई माजी का साया था। मरियम अब उससे दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि वो खुद तड़प तड़प कर मुझे अपने वजूद के अंदर उतारने के लिए बेचैन हो रही थी और बार बार मुझे खुद में समेट रही थी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अब सिर्फ मेरे नाम की माला जप रहा था और मैंने भी अपनी 6 माह की तमाम तर तन्हाई, कर्ब और प्यास को उसके रेशमी वजूद में डूब कर पूरी तरह से बुझाया। हम दोनों रात के आखिरी पहर तक एक दूसरे के जिस्मों से खेलते रहे और मोहब्बत का वो तूफ़ान बर्पा करते रहे जिसका ख्वाब मैंने शादी के पहले दिन देखा था। उसकी सिसकियाँ और उसकी मदहोश आवाज़ें कमरे के मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी में गूंज रही थीं और वो बार बार कह रही थी कि आसिम मुझे और प्यार करे, मैं सिर्फ आपकी हूँ। अगली सुबह जब हम उठे तो मरियम के चेहरे पे कोई खौफ या पछतावा नहीं था, बल्कि एक नई नवेली दुल्हन जैसी हया और गरूर था। वो मुस्कुराते हुए मेरे लिए चाय लेके आई और हमने बेड पे बैठ के एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चाय पी। मैंने उसे अपने करीब किया और मुस्कुराते हुए उस जादुई जड़ी बूटी का राज बताया जो हकीम साहब ने मुझे दी थी। मैंने उसे बताया कि वो जादुई जड़ी बूटी कोई नशा नहीं था, बल्कि वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली एक नहायत नायाब और कीमती देसी जड़ी बूटी थी जिसे अशोक गंधा, सफ़ेद मूली और शकाकल मिस्री का ख़ास मुरक्कब कहा जाता है। ये देसी नुस्खा इंसानी जिस्म के अंदरूनी एसाबी दबाव, खौफ और जहनी तनाव को जड़ से ख़त्म करता है और सर्द मिजाज ख़वातीन के अंदरूनी हार्मोन्स को बेदार करके उनके अंदर अपने शौहर के लिए शदीद तड़प, गर्मी और मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। हकीम साहब इस देसी नुस्खे ने और मरियम के दिल से माजी की छोटी मोहब्बत के खात्मे ने हमारी उजड़ी हुई ज़िंदगी को दोबारा एक खूबसूरत जन्नत बना दिया था। अब मरियम रोज़ रात को खुद नए नए खूबसूरत लिबास पहन के मेरे सामने आती और ख़ुद से पहल करके मेरी बाहों में समा जाती और देखते ही देखते हमारी ज़िंदगी में अब प्यारे से बच्चों की रौनक भी आ चुकी थी और हमारी वो 6 माह की तड़प और कश्मकश एक लाजवाल और सच्ची मोहब्बत के खूबसूरत अंजाम में बदल चुकी थी। और अब हम दुनिया के सबसे खुशहाल और मुतमईन मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे।